Hi everyone, I welcome you all to UPSC with HM. So this video was highly requested by you all. So today I'll be sharing my essay strategy with you all. I hope this will help you in clearing some of your doubts regarding essay and will reduce some of your tension. Okay. So before starting the video, I want you all to make some affirmations. Okay. What are those affirmations? Firstly, I want you all to realize or accept that not everybody has a good vocabulary. Okay, you should be okay with that, that not everybody has a very high level of vocabulary, and essay is much beyond that. Second point, I want you all to realize or accept that I'm not a genius to produce thoughts or examples on the spot, so I need preparation, and I myself belong to this lot. I am not that genius कि मैं thoughts or examples on the spot prepare कर सकूँ, so I need preparation for that, right? And the third point is, and the very important point is, essay is a whole paper of 250 marks. It is not a creative assignment project. Please remember that essay का एक हाईली academic पेपर बनाया गया यूपीएससी की तरफ से which gives us 250 marks as equal as any other so it has 250 marks which is equal to any other GS paper, right? So essay is not a creative assignment. It is not made for you to explore. It is not made for you to just explore your creativity on the spot. Okay, so this is a very important affirmation which I want you all to remember, that it's a paper and you need to prepare for. Now, after, I hope you have realized these affirmations. So after that, let's begin with what all I did in my essay. ठीक है, तो सबसे पहले एज आई सेड आई ट्रीटेड essay as equal to any other GS paper. ठीक है, I never neglected essay. Second point, I identified themes of the essay, PYQs and made a list. ठीक है. Third point, I prepared extensive contents on these themes by researching, which I'll tell you later. Fourth, I added examples, case studies from newspaper throughout the year. ठीक है, and this throughout the year I mean 2022 to 2023. मैंने मेरा पहला मेंस 2023 में दिया था, 22 से मैंने प्रिपरेशन फॉर्मली स्टार्ट की थी. तो पूरा 2022, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने जैन 2022 से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, तो यहाँ से मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मेरा फोकस करंट अफेयर्स तो होता ही था, उसके साथ साथ ऐसे भी होता था कि मैं ऐसे पढ़ूँ न्यूज़पेपर कि मुझे ऐसे के लिए भी कंटेंट चाहिए. तो जब भी कुछ अच्छा मिलता था हिंदू में या कभी कभार किसी वेबसाइट पे या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, जब भी मैं इंडियन एक्सप्रेस डेली नहीं पढ़ती थी, कभी कभार, तो जब भी पढ़ती थी तो इसीलिए पढ़ती थी कुछ अच्छा केस स्टडी आ जाए या कुछ ऐसा, तो उसको मैं डायरेक्टली अपने ऐसे के नोट्स में थीम वाइज अरेंज कर लेती थी. ठीक है, so this is important. Fifth point is I wrote about 5 to 6 essays before my prelims itself. ठीक है, तो 23 के प्रीलिम्स के पहले ही मैंने बहुत सारे एसेज लिख लिए थे. ठीक है, तो नाउ अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हमें कंटेंट नहीं मिलता है, कि हमें ये नहीं समझ आता कि ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें, तो अभी उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे के लिए कंटेंट क्या होता है पहले ये समझो. देखो, एक तो जीएस टाइप एसेज होते हैं और एक होते हैं फिलोसफिकल टाइप ऐसे. अब जीएस टाइप ऐसे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, सारे के सारे ऐसे फिलोसफिकली आ रहे हैं. 2025 के पेपर में दोनों सेक्शंस में फिलोसफिकल एसेज थे, जीएस वाले एलिमिनेट ही हो गए हैं, ये मान लो. तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ कंटेंट है ऐसे का, तो अब लिखने तो हमें फिलोसफिकल ही है, 99% यही मान के चलो. बट फिलोसफिकल ऐसे में भी हमारी जो जीएस नॉलेज है वही काम आती है. मैं बताती हूँ कैसे. तो अगर हम पहले देखें तो जो जीएस की नॉलेज है यही हमें हेल्प करेगी फॉर ओपनिंग द डायमेंशंस. ठीक है, जो आप पेस्टल अप्रोच की बात करते हो ना, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पेस्टल, या हमें पूरा का पूरा ऐसे हमारा पेस्टल अप्रोच पे नहीं लिखना होता. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो पेस्टल अप्रोच जो फॉलो करता है इंसान, वो आई थिंक इट वाज एन ओल्ड अप्रोच. अभी पेस्टल अप्रोच वाले एसेज ही पहली बात तो नहीं आ रहे हैं, एंड दूसरा दिस इज़ एन ओल्ड स्ट्रैटेजी. एंड आई बिलीव दैट योर एंटायर एसे शुड नॉट बी जस्ट अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल. ये नहीं, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच. सो वॉट लाइक वाई आई हैव रिटन दिस हियर इज़, इफ़ यू हैव टू ओपन वन मैक्रो डायमेंशन. ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो डायमेंशंस क्या होते हैं वो भी बताती हूँ. तो ये जो हमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन, अगर एक आपके ऐसे का एक पर्टिकुलर डायमेंशन ओपन करना है, वो हम इसमें कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी जीएस की नॉलेज काम आती है. तो ठीक है, तो अगर आपकी जीएस की नॉलेज अच्छी होगी, आपने जीएस पेपर्स में अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, अच्छी केस स्टडीज़ पढ़ी होंगी, रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, तो ऑटोमेटिकली दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर ऐसे. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात,
जो हमारे फिलोसफिकल एसेज हैं, इट हैज़ अ जीएस फाउंडेशन। जैसे मैंने बोला, कोई भी फिलोसफिकल एसे जो है, जब आप उसको डिकोड कर लेते हो, वंस यू हैव डिकोडेड, वंस यू हैव अंडरस्टूड द एसे, वंस यू हैव अंडरस्टूड द थीम बिहाइंड दैट एसे, यू विल रियलाइज दैट दैट फिलोसफी हैज़ अ जीएस फाउंडेशन एट इट्स बेस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ऐसे लिया है, देयर वाज दिस PYQ, द बेस्ट वे टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ स्टिल शाइनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू डू दैट थिंग टिल यू हैव दी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब कि जब तक आप बिल्कुल ख़राब सिचुएशन में ना पहुंच जाओ, उसके पहले ही आपको अपना काम कर लेना चाहिए। दैट इज़ थोड़ा ब्रॉडली इसका मतलब ये है, अभी मैं ठीक से नहीं बता पा रही हूँ। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इस हिस्से का। तो इसको जब हम डिकोड कर लिया है, तब इसको हम ओपन अप कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब इससे मैं, हाँ, इससे ना, अब ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, बट अभी जस्ट ये समझो, इस ऐसे से मुझे ये समझ में आया, तो मेरे दिमाग में जो डायमेंशन आने चाहिए वो क्या आएंगे कि पॉलिटिकल में इसका मैं किस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, कि पॉलिटिकल में अगर मैं पॉलिटिकल डायमेंशन में सोचूं कि जब तक मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तब मुझे अपना काम ठीक कर लेना चाहिए। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अभी हमारे पास चांस है, इंडिया हैज़ स्टिल द चांस टू लाइक टू डू बेटरमेंट विद इट्स पॉलिटिकल सिचुएशन। क्यों? क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है हमारे पास, तो हमें उसको ठीक करने का टाइम है। इकोनॉमी में अगर मैं देखूँ तो इंडिया ने जो 1991 के जो रिफॉर्म्स किए थे, वो क्यों किए थे? क्योंकि इंडिया की जो BOP सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी, है ना। हमारे फॉरेक्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, फिजिकल डिफिसिट हमारा 15% तक जा चुका था, करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत हाई था, ये सब सिचुएशन थी। तब जाके इंडिया को फोर्सफुली वो रिफॉर्म करने पड़े। तो मतलब इंडिया, एंड वी कैन से दैट इंडिया स्टिल रिपेयर्ड इट्स रूफ व्हेन द सन वॉज स्टिल शाइनिंग। ठीक है, तो ये आपको इकोनॉमिक डायमेंशन में मिल गया। सिमिलरली आप कल्चरल डायमेंशन में अगर जाओगे, तो उसका मतलब है सेक्युलर हारमोनी। इसका मतलब कि we still have the time, we still have the time to become a secular and a harmonious society. Otherwise, if we lose that time, so India can go on the path of other uh, Balkan countries like Yugoslavia आपको एग्जाम्पल पता होगा कि डिवाइडेड इनटू मैनी कंट्री, इट डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर कंट्रीज, राइट। तो इंडिया वहाँ तक ना पहुँचे, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, दैट वी नीड टू बी हारमोनियस। ठीक है, तो यू आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये फिलोसफिकल एसे का जो बेस था वो ये था, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली आर GS नॉलेज। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि फिलोसफिकल एसेज को भी वंस यू हैव डिकोडेड देम, इट बिकम्स अ GS टाइप ऐसे। बट जस्ट फिलोसफिकल एसे में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो कंटेंट का तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अब कंटेंट के लिए क्या प्रिपेयर करना है फिलोसफिकल के लिए, आपको कुछ कुछ फ़िलोसफीज़ याद कर लो। जैसे कि सोक्रेट्स की क्या फ़िलोसफी थी, प्लाटो ने क्या बोला था। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कोट्स याद कर लो। ठीक है, नेम्स ऑफ द फिलोसफर्स जो मैंने बोला, तो फिलोसफर्स प्लस उनकी फ़िलोसफीज़। और ये फ़िलोसफीज़ इंडियन भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो इंडिया में जैसे महाभारत है, महाभारत से बहुत सारी टॉपिक्स निकल के आ सकते हैं। रामायण है, महाभारत है, गीता है। और अगर हम फॉरेन में जाएं तो ये सोक्रेटिस है, प्लाटो है, ऐसे और भी हो जाएंगे। ठीक है, प्लस आपको कोट्स याद करने हैं, ये करना है। उसके बाद गुड बुक्स, देयर आर वेरी गुड बुक्स, और उन बुक्स से क्या थीम है, उन बुक्स की समरी पढ़ लो, कहीं से भी निकाल लो उन बुक्स की समरी, नाम याद कर लो, ये इट विल कम हैंडी। अब इस चीज़ को करने में ना एथिक्स की जो नॉलेज है ना, इट रियली कम्स हैंडी। इसलिए बोलते हैं कि एसए और एथिक्स को साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग दैट, तो मेक श्योर दैट वंस यू हैव रेड योर GS, वंस यू हैव एटलीस्ट यू हैव बेसिक आइडिया ऑफ एथिक्स, देन यू शुड डू योर एसए। ठीक है, क्योंकि एसए करते हुए आपको एथिक्स की नॉलेज बहुत हेल्प करती है। तो ये हो गया। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़िलोसफिकल एसेस में ना कुछ थीम्स होती हैं। ये थीम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, और इन थीम्स के ऊपर आपको अपने सिंपली नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ मैंने मेंस नोट मेकिंग वाली वीडियो में बताई थी अबाउट GS, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस हियर ऑल्सो। मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। जो काम मैंने GS में किया वही काम मैंने एसए में किया। थीम्स आइडेंटिफाई करो, PYQ को लेके बैठो कि ऐसे में कौन कौन सी थीम्स, आपको खुद दिख जाएगा कि वो थीम्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो उन थीम्स को देखो और उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर नोट्स बनाओ। नोट्स कहाँ से बनाओगे? अब तो बहुत ईजी हो गया है, ChatGPT करो ना, सीधा सीधा। ChatGPT आपको इतना मटेरियल दे देगा कि कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये काम करना है, थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनके नोट्स बनाने हैं। अब ये बोलोगे कि भाई ऐसे पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ सकते सोल्यूशन, वो नहीं करना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थीम्स।
वो थीम्स भी क्या है मैं बताऊँगी आगे, ठीक है। फोर्थ काम जो आप इसके बाद जो काम करना है वो करना है टॉपर एसेज। टॉपर एसेज को आपको एक्सटेंसिवली यूटिलाइज़ करना है। टॉपर एसेज को मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था। किन चीज़ों के लिए यूज़ किया था? नंबर 1, वोकैबुलरी, गुड लाइन्स, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, एग्जाम्पल। देखो, जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे हमें केस स्टडीज़ मिलेंगी, लेकिन वहाँ से हमें इंट्रोडक्शंस फ्रेम करने पड़ेंगे। टॉपर कॉपी से क्या होता है, हमें रेडीमेड इंट्रोज मिल रहे हैं, रेडीमेड कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसको यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट उठाओ, आपने जो थीम्स बनाई हैं उन ऐसे के नोट्स में ऐड करो उनको। इंट्रो उठाओ, कंक्लूजन उठाओ, गुड वोकैबुलरी, मैंने वोकैबुलरी भी उठा ली थी पूरी। कुछ अच्छा लग रहा है उठाओ, गुड लाइन्स अच्छी लग रही हैं वो भी ले लो, एग्जाम्पल्स ले लो, सब कुछ। मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर डूइंग योर ऐसे, ठीक है। सिमिलरली कोचिंग के टेस्ट पेपर्स हैं, इनको भी उठाओ, यहाँ से कंटेंट प्रिपेयर करो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो करो। अब ये पॉइंट इसमें क्या है कि थीम्स रिपीट इन फिलोसॉफिकल एसेज, सो योर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन कम हैंडी एट मैनी प्लेस। इसका मतलब क्या है, अगर एक थीम पे फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, लर्न प्रोमिनेंट थीम्स, जैसे ये है, एक सवाल आता है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। ये आई थिंक सोक्रेटीज़ का है ये कोट, मतलब कि जो लाइफ एग्जामिन्ड नहीं होती दैट इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो ये होता है एग्जामिनिंग लाइफ। अब ये बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में बहुत जगह रिपीट हुआ है, ठीक है। तो लाइफ के बारे में बहुत सारे ऐसे आते हैं, एग्जामिन्ड लाइफ क्या होती है, अनएग्जामिन्ड लाइफ कैसे होती है, हम लाइफ को एग्जामिन कैसे करें, और हम लाइफ को एग्जामिन क्यों नहीं करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। दीज आर थीम्स, इन सबके आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करो ना। फिर आती है एक और, ये टॉपिक 2025 में आया था लाइफ के ऊपर, कि लाइफ एज अ जर्नी एंड लाइफ एज अ डेस्टिनेशन, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर थीम कॉल्ड लाइफ, ठीक है। दूसरा आता है करेज के ऊपर, बहुत सारी एसेज आते हैं, ऑनेस्टी के ऊपर आता है, फेथ के ऊपर आता है, वॉर एंड पीस के ऊपर मैंने खुद लिखा है 2025 में, मेंस में ऐसे आया था एक, आई होप आया था क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एक वॉर एंड पीस में से कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ये आता है पेन एंड सॉरो, बुद्धाज लाइफ लेसन, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, ये वाला टॉपिक है। अवेयरनेस है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन लाइफ, दैट अगेन कम्स विद द ब्रॉडर थीम ऑफ लाइफ। तो ये सारी थीम्स हैं, तो इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इन पर थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे। अब लाइफ के बारे में कहीं और कोई ऐसे आएगा, हम यही वाले पॉइंट उठा के उसमें डाल देंगे मॉडिफाई करके। तो प्रॉब्लम तब होती है जब हमने लाइफ के बारे में कभी कुछ कंटेंट पढ़ा ही नहीं है, कभी कुछ ब्रेनस्टॉर्म किया ही नहीं है, तो हमें वहाँ पे टाइम लगता है पॉइंट सोचने में। अगर हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं वो चीज़ें, तो हम आर्गूमेंट्स आराम से बना सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग ऑल दैट अब क्या करना है, अब आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। डायमेंशंस जो मैंने बोला, मैक्रो क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करो, और उनके माइक्रो पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करो, प्लस एग्जाम्पल्स ब्रेनस्टॉर्म करो। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, बेस्ट टाइम टू रिपेयर इज़ व्हेन द सन इज़ स्टिल शाइनिंग। इसके पहले तो हमें मैक्रो क्वेश्चंस, अब ये ऐसे मैं ये वाला चीज़ें बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, जस्ट एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि ऐसे को सोचते कैसे हैं। द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ स्टिल शाइनिंग। अब इसमें सबसे पहले माइक्रो क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। माइक्रो क्वेश्चंस मतलब व्हाट डू वी मीन बाय रूफ, व्हाट डू वी मीन बाय सन, वाई इज़ इट दैट द बेस्ट टाइम टू रिपेयर इज़ व्हेन द सन इज़ स्टिल शाइनिंग, ये पहला माइक्रो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वाई डू वी नॉट रिपेयर, वाई डू सम पीपल डू नॉट रिपेयर देयर रूफ व्हेन देयर सन इज़ शाइनिंग, ये दूसरा हो गया। ये हो गया माइक्रो क्वेश्चन। अब जब इस वाई का एक माइक्रो क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कि वाई डू सम पीपल नॉट रिपेयर देयर रूफ, इसका जब आंसर बनेगा तो वो होंगे माइक्रो पॉइंट, वो होंगे माइक्रो पॉइंट्स। मतलब जब उस वाई का आंसर मिलेगा कि क्यों नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें करेज नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ से भागते हैं, क्यों, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अनअवेयर्ड होते हैं। वाई, बिकॉज दे हैव नॉट एग्जामिन्ड देमसेल्व्स, ये वही एग्जामिन्ड लाइफ वाला आ गया। वाई, बिकॉज दे डू नॉट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स। तो ये सारे रीजन्स आ गए, ये सब होते हैं माइक्रो पॉइंट्स, समझ में आया। अब इन एक एक माइक्रो पॉइंट का एक एग्जाम्पल देना है। And also you should remember that giving micro points and giving examples, they're not the same thing, ठीक है। examples and micro points are two different things. You should not equate examples with points, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए याद में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी पे पूरा का पूरा ऐसे लिख डालो, नहीं। एक पॉइंट में एक एग्जाम्पल आ गया, दैट इज़ इनफ, आगे बढ़ो। अब एग्जाम्पल आप एक पॉइंट के साथ 10 भी दे दो कि डजंट मेक एनी इम्प्रूवमेंट इन योर मार्क्स, समझ में आया। What is important is what are the points that you are giving, what are the dimensions that you are giving.
ये सब इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि हम एग्जाम्पल्स दे देंगे तो बहुत ही बढ़िया ऐसे लिखा है, नहीं ऑनेस्टली। और अगर हम एक्चुअली देखें कि क्या होता है तो एग्जाम्पल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल लेके आओ, इट विल एड अप, बट एक एग्जाम्पल जो हेल्प करेगा वो 3 एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो बस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो फाइनली व्हाट डू यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ फ्लो ऑफ राइटिंग, विच आई थिंक ऑलमोस्ट सबको हो जाता है एट सम पॉइंट, या एक दो ऐसे लिखने के बाद आपको हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। हम सब ने जीएस पढ़ा है, हम सब ने आंसर्स लिखे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब जैसे आपको अपने आपको सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स करनी है, सीक्वेंसिंग ऑफ योर क्वेश्चंस, किस तरीके से आप अपने थॉट्स को अलाइन कर रहे हो, किस तरीके से आपने जो अपने माइक्रो और मैक्रो पॉइंट सोचे हैं उसको किस तरीके से अलाइन कर रहे हो, बस यही है। ऐसे इसी को बोलते हैं फ्लो। जो लोग बोलते रहते हैं कि फ़्लो अच्छा नहीं है, फ़्लो अच्छा नहीं, क्या होता है फ़्लो यही होता है कि ऐसा नहीं है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप सबसे लास्ट में रख दिए हो, और जो सबसे बेकार पॉइंट है, ये जो नॉट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आपने पहले पे रख दिया है। ये तो होते हैं ना बेकार अलाइनिंग, इसी को बस बोलते हैं कि इसी को ठीक करना है आपको। यू शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर थॉट्स, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स, राइट। बिकॉज जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके पास भी लिमिटेड टाइम है, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं कि अपना फ्लो अच्छा करो। और ये फ्लो कब आएगा, जब आपने 3 4 5 ऐसे लिख ली हो, उसके बाद यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड, या ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि मैं कैसे इस चीज़ को, कि मैं किसको पहले रखूँ किसको बाद में रखूँ, तो ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, यू नीड टू हैव अ डिसेंट वोकैब। अब मैंने जैसे बोला लिटरेचर, पीएचडी लेवल लिटरेचर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें एक डिसेंट वोकैबलरी चाहिए। डिसेंट वोकैबलरी क्या होती है, आई थिंक वो सबको होनी, लाइक वो सबको ही होगी, इतनी भी बेकार नहीं होती किसी की वोकैबलरी। एंड इवन इफ है आपकी वोकैबलरी, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज हाउ टू करेक्ट दैट। आप कोई बोले कि भाई वोकैबलरी अच्छी क्यों नहीं है, आपने बुक्स क्यों नहीं पढ़ी, अरे नहीं पढ़ता है हर कोई, लेकिन नॉट एवरीबडी इज़ एन एविड रीडर, राइट। मैं भी नहीं हूँ। तो जिन लोगों ने बचपन से बुक्स पढ़ी हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन, लाइक बिकॉज दीज पीपल एन्जॉय रीडिंग बुक्स। कोई ये सोच के नहीं पढ़ रहा होता है बुक की मुझे आगे जाके यूपीएससी में इससे लिखना है इसलिए मेरे को बुक्स पढ़नी है। मेरे को नहीं पसंद है उतनी ज़्यादा फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मेरी भी उतनी अच्छी वोकैबलरी नहीं है। तो इवन सो इफ़ यू आर ऑल्सो समबडी लाइक दैट, डोंट वरी, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते ही हैं, जैसे मैंने बोला कि जो भी आपको वर्ड अच्छा लग रहा है उसको फाइंड आउट कर लो, उसको लिख लो साइड में, उसका मीनिंग देख लो। कोई लाइन अच्छी लग रही है उसको लिख लो, याद कर लो। यही एक तरीका है कि जस्ट कॉपी पेस्ट एंड लर्न इट, ठीक है। अगला है प्री प्रिपेयर्ड कंटेंट। दिस इज़ अ मस्ट, जो मैंने बता ही दिया है कि हर थीम पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तब भी पॉइंट्स आएंगे। एटलीस्ट एक बार तो रीड करा होना चाहिए, तभी पॉइंट्स रिक्रिएट होते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर की बहुत अच्छा कंटेंट है उनको वो ऑन द स्पॉट आया है। आई डोंट बिलीव दैट कि किसी को ऑन द स्पॉट वो लाइक आ सकता है। उसने कभी ना कभी उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म किया ही होगा, या कभी ना कभी वो कहीं पढ़ा होगा, या एटलीस्ट उसका सिमिलर टॉपिक पे लिखा होगा, तभी आते हैं वो पॉइंट्स। लास्टली, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड अ फ्यू एसेज टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बोला कि अगर आप सीधा ये सोचोगे कि कंटेंट प्रिपेयर करके डायरेक्टली एग्जाम में ही लिखूंगा, दैट विल नॉट गोना हेल्प यू मच। वाई? बिकॉज जैसे मैंने ये बोला, टू चेक इफ़ यू आर एबल टू अलाइन योर थाट्स प्रॉपरली, टू चेक इफ़ योर एसे इज़ इन अ गुड फ्लो, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड बिलीव मी, जब आप इवन इफ़ यू हैव गिवन 1 अटैम्प्ट और 2 अटैम्प्ट, फिर से अगर आप 7 8 महीने के बाद एक ऐसे लिखोगे ना, बहुत ख़राब ऐसे आएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो एंड दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज ये सब क्या होता है कि थोड़ा हमारा, जैसे मैंने बोला कि हमारे थॉट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अलाइन होने चाहिए। जीएस पेपर में वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कैसा लिख रहे हो, आपको बस 5 पॉइंट लिखने हैं किसी जीएस के आंसर में, वो कैसे भी लिख दो आप, तो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसे में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप कितने अच्छे से सोच पा रहे हो, आपकी आपकी लैंग्वेज क्या निकल रही है ऐसे में, कहीं बहुत ज़्यादा जीएस टाइप तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद ही आती हैं। तो अगर बहुत टाइम के बाद लिख रहे हो या पहली बार लिख रहे हो, तो बी रेडी टू राइट 4 5 वेरी बैड एसेज। 4 5 बहुत ही ख़राब चीज़ लिखोगे, तब 6th ऐसे डिसेंट निकलेगा। एंड दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू दैट, ठीक है। तो इससे डरना या ऐसा डिमोटिवेट मत होना, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि बस फ्लो का ध्यान रखो, डिसेंट अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी, प्री प्रिपेयर्ड कंटेंट होना चाहिए, और थोड़ी बहुत ऐसी प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर गुड टू गो। बस यही है। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल दैट आई हैड टू टेल। अगर अब ये देख लेना और प्रैक्टिस अ फ्यू एसेज एंड टेल मी इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट, ठीक है।
तो ये करो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आई विल एड्रेस दैट इन द कमेंट्स. एंड ऑल्सो गाइज, इफ़ यू लाइकिंग द वीडियोज़ जो भी मैंने अभी तक दिया है, जैसे मेंस के बारे में, या मैंने मतलब ये अभी बोल रही हूँ, मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ ये सब, कि प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक, वॉट एवर यू थिंकिंग अबाउट द वीडियोज़ या द कॉन्टेंट विच आई एम गिविंग. अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बेटर होनी चाहिए या ये चीज़ अच्छी है, प्लीज़ राइट दैट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि क्या चीज़ अच्छी हो रही है या कि कोई लिख नहीं रहा है वो. आई मीन लाइक, आई नो दैट you guys are getting the help, but it will be really helpful if you could also tell me कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है. I'll be happy to know that. Thank you so much guys. Bye bye.